اوور آل ڈیفیسٹ میں نے عرض کیا 6.54%, پرائمری بیلنس بھی میں نے عرض کر دی 0.4%, اور پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 66.5%. Now this is important. تو 6.5% پی ایم ایل این نے چھوڑا جون 2018 میں, وہ اب 21% ہے. تو اس سے ڈبل جیپٹی, ایک طرف ڈیٹ سٹاک ڈبل, دوسری طرف جو ریٹ ہے وہ 3.5 ٹائمز. ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. گروتھ ہوگی تو آپ کا یہ مزید پہیہ چلے گا اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. بجٹ روایت سے ہٹ کر بنایا, ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈالیں گے. آئی ایم ایف والے بجٹ سے خوش نہ ہوئے تو فون آ گیا ہوتا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس, بولے بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 7.9% ہے. جی ڈی پی میں ٹیکسز کا تناسب 8.7% رکھا. مہنگائی کی شرح 21% رہے گی. ترقی کی شرح 3.5% رکھی ہے. گروتھ ہوگی تو ملک کا پہیہ چلے گا, ترقی ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. زرعی شعبے میں ٹیکس چھوٹ اور بہتری لانے سے فوڈ سیکیورٹی بڑھے گی اور ڈالر بچیں گے. آئی ٹی سیکٹر ملک میں کثیر تعداد میں زرعی مادہ لا سکتا ہے. اس کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں. ایس ایم ایز کے لیے بھی اسکیمز لائی جائیں گی. کاروباری طبقے کے تحفظات دور کرنے کے لیے ایف بی آر کی 2 کمیٹیاں بنا دیں. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 1074 ارب روپے کی سبسڈی رکھی گئی. 900 ارب روپے صرف پاور سیکٹر کے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے حکومت کے کل اخراجات 14,400 ارب روپے ہوں گے. قرضوں پر سود کی ادائیگی سب سے بڑا بوجھ ہے. محصولات میں اضافے کے لیے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. ایف بی آر کا ریونیو ہدف 9,200 ارب روپے ہے. پیٹرولیم لیوی سے 869 ارب روپے حاصل ہوں گے. اسحاق ڈار نے مزید کہا یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا, گھی, دالوں پر سبسڈی کے لیے 35 ارب روپے رکھے ہیں. حکومت ایئرپورٹس کی نجکاری کے لیے کام کر رہی ہے. نجکاری پروگرام میں ڈسکوز کو بھی شامل کریں گے. امید ہے یورپی یونین جی ایس پی پلس میں توسیع دے گا. خوردنی تیل کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم نہیں کیا. ایڈ ہاک ریلیف تنخواہ پر دیا گیا. الاؤنس پر اطلاق نہیں ہوتا. باہر سے $1,00,000 تک لانے کی ایمنسٹی اسکیم نہیں دی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وضاحت, بولے پیٹرولیم لیوی 50 روپے لیٹر سے زیادہ نہیں بڑھائی. ڈبہ پیک دودھ پر بھی اضافی سیلز ٹیکس نہیں لگایا گیا. کاروبار میں آسانی اور تجارتی سہولیات بڑھائی ہیں. چھوٹے درمیانے درجے کی صنعتوں کو آسان قرضے دیں گے. جائیداد کی خریداری پر 2% ٹیکس ختم کر دیا ہے. وزیر خزانہ نے مزید کہا پچھلی حکومت نے پبلک قرضے بڑھائے. 4 سال میں قرض دگنا ہو گیا. ڈیفالٹ کے رٹ لگانے والے جان لیں ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. پاکستان ایٹمی قوت ہے, اب معاشی قوت بھی بنے گا. حالیہ بجٹ ملک کی معیشت کو درپیش چیلنجز اور بحرانوں سے نبردآزما ہونے کا آغاز ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ, لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیدا کردہ سیاسی عدم استحکام سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. معیشت کو اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. چارٹر آف اکانومی ہی عوامی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. بجٹ میں اتحادی حکومت نے ایسے شعبوں کو ترجیح میں رکھا جن کے ذریعے اقتصادی ترقی تیز ہو اور سرمایہ کاری بڑھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قازقستان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. توانائی, زراعت, آئی ٹی اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق. وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے وارے نیارے. تنخواہوں میں 35% تک اضافہ تجویز. گریڈ 16 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 35% ایڈ ہاک ریلیف کا اعلان. گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہیں 30% بڑھائی گئیں. پینشن میں 17.5% اضافے کے اعلان کیا گیا. سرکاری ملازمین کی کم از کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 مقرر. ای او بی آئی پینشن 8,500 سے بڑھا کر 10,000. کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی گئی. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب, دفاعی بجٹ 1804 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی. درآمدات کا ہدف 58.7 ارب ڈالر اور برآمدات کا ہدف 30 ارب ڈالر رکھنے کی تجویز دی گئی. سرکاری ملازمین کی ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں. عوام کو کوئی ریلیف ملا ہی نہیں. ہم نے سمجھا تھا پیٹرول سستا کریں گے, آٹا سستا کریں گے, چینی وغیرہ سستی کریں گے. ان لوگوں نے وہ تو ریلیف دیا ہی نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بچوں کی اسکول کی فیسیں, آٹا, چینی, دال, کرایہ, بجلی, گیس, یہ چیزیں سب چیزیں مہنگی ہو چکی. مہنگائی نے ہماری کمر توڑ رکھی ہے. غریب آدمی کا کوئی ساتھی نہیں ہے. بیچارے سیاستدان جو ہے نا, یہ بیچارے غریب آدمی, اللہ ان کا بھلا کرے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ پیٹرول سستا ہو, آٹا سستا ہو, کھانے کا اشیاء سستی ہو, جو غریب آدمی روٹی تو کھا لے یار.
बजट पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल, कोई खुश तो कोई गिला शिकवा करने लगा। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। अगर कुछ मिला है तो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को, निजी शोबे के मुलाजमीन और दिहाड़ीदार कहाँ जाएं? अशिया खुरोनोश और पेट्रोल की कीमतें कम करते तो कुछ फायदा होता। सिंध काबीना ने आइंदा माली साल के लिए 2244 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध आज ऐवान में बजट पेश करेंगे। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35 या 40% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम, सेहत, अमन व अमान और सोशल प्रोटेक्शन के फंड्स बढ़ाने की सिफारिश होगी। कराची के मनसूबों के लिए 12,000 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 15 मेगा मनसूबों पर 147 अरब रुपए अखराजात का तखमीना है। बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों की जानिब से 122 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से राबते रखे, उनको भी आलमी बरादरी से किए वादे पूरे करने चाहिए। अफगान हुकूमत पर पाकिस्तान की पोजीशन वही है जो आलमी बरादरी की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, बोले चेयरमैन PTI का असल मसला ये है कि वो फ़ौज उनकी मदद क्यों नहीं कर रही। उनके फ़ौज से मसाइल फ़ौज के गैर सियासी होने के फैसले के बाद हुए हैं। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल के खाम माल, मशीनरी, बैटरी और इन्वर्टर पर कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। डायपर, थिनर, पोलिएस्टर और टेक्सटाइल के खाम माल पर ड्यूटी ख़त्म। कुरान पाक की तबात के दरामदी कागज़ पर ड्यूटी ख़त्म। कबायली अजलाह के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स छूट में तोसी। मादनियात और राइस मिल्स की दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी ख़त्म। जायकेदार पाउडर और ईरानी अद्वियात की दरामद पर भी ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। सनतों पर नया टैक्स नहीं लगेगा। ज़रई शोबे के लिए भी कई मराद का ऐलान। 50,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ, बिजनेस और ज़रई कर्ज के लिए 10 अरब सब्सिडी दी जाएगी। IG सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़। 35 से 40 करोड़ आमदन पर 6% सुपर टैक्स आयद। 30 से 35 करोड़ आमदनी पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 30 करोड़ आमदन पर 3% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। 15 से 20 करोड़ आमदनी पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। POS पर सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15% मुकर्रर। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल बैरून ममालिक से 6,971 अरब हासिल करेगी। नए बजट में सऊदी ऑयल फैसिलिटी से कोई रकम ना मिलने का तखमीना। IMF से रकम मिलने की भी उम्मीद। चीन से मजमूई तौर पर 2,465 अरब हासिल किए जाएंगे। हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया। सोलर पैनल की तैयारी के लिए खाम माल पर टैक्स खत्म कर दिया गया। वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का कहना है गुज़िश्ता हुकूमतों ने मुल्की कर्जों में 90% इजाफा किया। खारजा पॉलिसी में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया, जिसकी वजह से आलमी सतह पर एतमाद को नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने बजट में मुतवसत तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया। अबूरी हुकूमत को बजट पर नज़रसानी करना होगी। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। असद उमर बोले हुकूमत ऐसे बजट के लिए कह रही थी कि असम्बली तहरीर नहीं कर सकते। ऐसा बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। पार्टीज के फैसले आवाम करती है, सियासी रहनुमा नहीं। PTI रहनुमाओं की अदालत पेशी। असद उमर और असद कैसर के मुख्तलिफ मुकदमात में 20 जून तक जमानत में तोसी हो गई। 92 खरब के टैक्सेस का बोझ डालकर गरीब अवाम पर जुल्म किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है वजीर आजम और वज़रा के अखराजात और मरात कम करनी चाहिए थी। 7,000 अरब सूद में चला जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने एक साल में 15,000 अरब कर्ज लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया। बैंकों से कैश रकूम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर 8.6% टैक्स लगाने की तजवीज़। चेयरमैन FBR आसिम अहमद का कहना है बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जायद किए गए हैं। 175 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगाए गए।
25 अरब रुपए के बिलवास्ता टैक्स लगाने का फैसला किया। गैर ममालिक में डेबिट क्रेडिट कार्ड्स नॉन फाइलर्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा, फाइलर्स पर 5% टैक्स आयद किया जाएगा। IMF की तमाम शराइत को मिनवन तस्लीम कर लिया, रवां माही मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी और सैलाब से मईशत को नुकसान हुआ। मौजूदा हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से IMF से मामला तय किए। सऊदी अरब और UAE ने हाथ थामा, $3 अरब की मदद की। चीन की सपोर्ट इंतहाई मददगार साबित हुई। माली साल 2023-24 में दिफाई बजट में 281 अरब का इजाफा। आइंदा माली साल के दिफाई बजट की मद में 1804 अरब रुपए मुख्तस। रुपए की कदर में कमी के बायस दिफाई बजट में कदर इजाफा किया गया। आइंदा माली साल के दिफाई बजट में तीनों मुसल्लह अफवाज के अखराजात शामिल। वजारत दिफा, दिफाई पैदावार और झेली इदारों का बजट भी शामिल। रवा माली साल 2022-23 में दिफाई बजट 1523 अरब रुपए था। रवा माली साल मुसल्लह अफवाज ने कौमी बचत मुहिम के तहत कई अखराजात में कमी की। सिख बरादरी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा, अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत और पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती। कहा, फौजी तनसीबात पर धावा बोलने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात का भी जिना हाउस का दौरा, बोले 9 मई को मुल्क दुश्मन अफराद ने बहुत घिनौनी हरकत की। सानेहे में मुलव्वस अनासर को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में इस्तेहकाम पाकिस्तान जलसा। 9 मई के शरपसंद वाक़यात की पुरजोर मजम्मत, पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तान की साख पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, मजबूत पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी का ज़ामिन है। मुकर्रीन का खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मीडिया गुफ्तगू में सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, बोले वोट देने वालों को उठाया जा रहा है, ऐसे ही इलेक्शन करवाने हैं तो अभी ही मेयर का ऐलान कर दें। सिंध हुकूमत के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। मजीद बोले, बल्दियाती कानून में गैर कानूनी तरमीम को अदालत मुस्तरद कर देगी। माहौल दोस्त सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम। सिंध हुकूमत का चीन से इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की चीनी कंपनी को सिंध में प्लांट लगाने के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। मुख्तलिफ मामलात में सब्सिडी फराहम करने की भी यकीन दहानी। बहीरा अरब में समुद्री तूफान से पाकिस्तान की साहली पट्टी मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। तूफान बाइपर जॉय कराची से 910 किलोमीटर दूर। माहीगीरों को 12 जून से समुंदर में ना जाने की सख्त हिदायत। 13 जून से सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। साहिल पर दफा 144 नाफिज। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन में तेज हवाओं से तामीरात को नुकसान का अंदेशा। इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। लाहौर में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को वाल्टन से लिंक करने का प्रोजेक्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने साइट का दौरा किया, सड़क की तामीर का जायजा लिया। मंसूबा मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत समर गेम्स से मुतल्लिक इजलास। सूबे में पहली बार समर गेम्स में 54 खेलों के मुकाबले कराने का फैसला। जीतने वाले खिलाड़ियों और टीम्स में 1 अरब 32 करोड़ रुपए के इनामात तकसीम होंगे। दौरा श्रीलंका की तैयारियां। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में खिलाड़ियों का खुसूसी कैंप। ट्रेनिंग के जरिए खिलाड़ियों की महारत और फिटनेस का जायजा। ट्रेनिंग कैंप में फखर जमान, इब्रार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, हारिस सुहेल, इमामुल हक और सऊद शकील शरीक हुए। कौमी टीम आइंदा माह टेस्ट चैंपियनशिप के तहत श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी।